हेलो स्टूडेंट, क्लास सेकेंड इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट ईवीएस, चैप्टर 5 एन आइडियल हाउसेस। इसमें एक हाउस दिया है, उसमें आपको बेडरूम, किचन, ड्राइंग रूम, बाथरूम और ड्रेसिंग रूम बताया गया है। ओके, तो आपको इस पूरे चैप्टर में हाउस के बारे में बताना है कि हाउस आपको कैसे बचाता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है, उसके बारे में आपको समझाया गया है। ओके। An ideal house, we all need shelter to live. It keeps us safe from hard weather, wild animals and dust. Need for safe place to live made our ancestors early man also to move from open place to caves. Building a house is both an art and as well as a science. A house should be built according to the climate of the place where we live in. A house should be a comfortable place to live in. An ideal house should have doors and windows to let in fresh air and sunlight. It should have wire nettings on doors and windows to prevent flies and mosquitoes from entering the house and to be safe from thieves. Special features of an ideal house are 1. Ventilation, 2. Sunlight, 3. Sanitation, ventilation, provision of fresh air to a room, building, etc. is called ventilation. Ventilation is important as it prevents air pollutants which may affect our health. Air enters our home from doors or windows, so the house must have enough windows and doors to let the fresh air in and stale air out. Green plants planted around the house and kept in pots inside the house also help in keeping the air clean and fresh. Sunlight makes the house bright, warm and cheery. Sunlight disinfects the house by killing germs and bacteria and hence protects us from disease naturally. A number of windows and an open courtyard make sure that plenty of sunlight comes into the house. 29. एक आदर्श घर हम सभी को रहने के लिए आश्रय की आवश्यकता होती है। यह हमें कठिन मौसम, जंगली जानवरों और धूल से सुरक्षित रखता है। रहने के लिए सुरक्षित स्थान की आवश्यकता ने हमारे पूर्वजों, प्रारंभिक मनुष्य को भी खुले स्थान से गुफाओं में जाने के लिए प्रेरित किया। घर बनाना एक कला भी है और विज्ञान भी। जिस घर में हम रहते हैं उसकी जलवायु के अनुसार घर बनाना चाहिए। एक घर रहने के लिए एक आरामदायक जगह होनी चाहिए। एक आदर्श घर में ताजी हवा और धूप आने के लिए दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए। मक्खियों और मच्छरों को घर में प्रवेश करने से रोकने और चोरों से सुरक्षित रहने के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर तार की जाली लगानी चाहिए। एक आदर्श घर की विशेष विशेषताएं हैं। 1. वेंटिलेशन, 2. सूरज की रोशनी, 3. स्वच्छता। वेंटिलेशन एक कमरे, भवन आदि के लिए ताजी हवा की व्यवस्था को वेंटिलेशन कहा जाता है। वेंटिलेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वायु प्रदूषकों को रोकता है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। हवा हमारे घर में दरवाजे या खिड़कियों से प्रवेश करती है, इसलिए घर में ताजी हवा और बासी हवा को बाहर जाने के लिए पर्याप्त खिड़कियां और दरवाजे होने चाहिए। घर के चारों ओर लगाए गए और घर के अंदर गमलों में रखे हरे पौधे भी हवा को स्वच्छ और ताज़ा रखने में मदद करते हैं। सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी घर को उज्ज्वल, गर्म और खुशमिजाज बनाती है। सूरज की रोशनी कीटाणुओं और जीवाणुओं को मारकर घर को कीटाणु रहित करती है और इसलिए हमें प्राकृतिक रूप से बीमारी से बचाती है। कई खिड़कियां और एक खुला आंगन यह सुनिश्चित करता है कि घर में भरपूर धूप आए। Sanitation. Wet prop which is not properly managed can cause health problems. A sanitation plan is required while building a house. PNSY. Waste water from the house is called sanitation. The waste of a clean house. Keeping a house clean is very important.
Following are the few which we can keep a house clean. Throw waste in the dustbins. Ways I dust the furniture to remove dust and dirt. Use disinfectants to clean the kitchen and bathroom floors. Sweep and mop the floor daily and keep the surroundings clean. Remove the cobwebs. Wash the curtains regularly. Keep the dustbins covered to keep away flies, mosquitoes and open your shoes or wipe your shoes on the doormat before enter the house. सैनिटेशन वाटर प्रॉप जिसका ठीक से प्रबंधन नहीं किया जाता है, स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। घर बनाते समय स्वच्छता योजना की आवश्यकता होती है। PNSY घर से निकलने वाले अपशिष्ट जल को स्वच्छता कहा जाता है। एक साफ घर की बर्बादी। एक घर को साफ रखना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित कुछ हैं जिन्हें हम घर को साफ रख सकते हैं। कचरे को कूड़ेदान में फेंके। तरीके में धूल और गंदगी को हटाने के लिए फर्नीचर को धूल चटाता हूँ। किचन और बाथरूम के फर्श को साफ करने के लिए कीटाणुनाशक का प्रयोग करें। प्रतिदिन झाड़ू लगाएं और फर्श को पोंछें और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें। मकड़ी के जाले हटा दें। पर्दों को नियमित रूप से धोएं। मक्खियों, मच्छरों और जीई को दूर रखने के लिए कूड़ेदानों को ढक कर रखें। घर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते खोल दें या डोरमेट पर अपने जूते पोंछ लें। इस चैप्टर का हिंदी और इंग्लिश हो गया। उसका फिल इन द ब्लैंक से बिल्डिंग ए हाउस एंड आर्ट एंड एज वेल एज साइंस। सेकेंड है ए हाउस शुड बी ए कंफर्टेबल प्लेस टू लिव इन। थर्ड है प्रोविजनल ऑफ फ्रेश एयर टू रूम इज कॉल्ड। Third is called ventilation. Fourth is sunlight makes up the house bright and warm. 5 a waste not properly managed can cause health problem. Match the following है column A, column B. Fresh air, sunlight, garbage, wine eating, sweat water. इधर डस्टबिन, विंडो, सैनिटेशन और वेंटिलेटर और वार्म हाउस। तो ये आपको मैचअप करना है। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डज एन आइडियल हाउस शुड हैव? एन आइडियल हाउस शुड हैव डोर एंड विंडो टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। ओके, सेकेंड है व्हाट आर द स्पेशल फीचर ऑफ आइडियल हाउस? स्पेशल फीचर ऑफ ए आइडियल हाउस आर वेंटिलेशन, सनलाइट, sanitation. What is the importance of ventilations in a house? Ventilation is important as a prevent air pollutant which may affect our health. Question number 4 है what is the importance of sanitation of our house? The waste of water which is not properly managed can cause health problem. A proper sanitation plan is required while building a house. Okay. Question number 5 list the way to keep our house clean. House clean: throw waste in the dustbin, dust the furniture to remove dust and dirt, sweep and mop the floor daily and keep the surrounding clean, remove the cobwebs, wash the curtain regularly. कर्टन्स रेगुलरली मतलब आपको रोज़ घर में साफ़ सफाई करनी चाहिए जिससे आपका घर क्या रहे, क्लीन रहे। ओके, ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।